Jai Gurudev, dear students. Children, you know we have already started chapter number 3, Legend of Indian Hockey. And here I told you that hockey spelling is wrong. E is missing here. So you can write E here after C. Okay. So in this chapter we are going to study about the legend of Indian hockey. And in this chapter we are studying about the story of Dhyan Chand. And Dhyan Chand was a famous player of hockey. And children, this first part or first page of this chapter I have already taught you during the online class. And in this first page of this chapter we have studied about the introduction of this game. And in this they have told us about the difference between outdoor and indoor game also. Like in the indoor games we need more mental ability, or we can say mental strength, but in case of outdoor games we need more physical stamina. Okay, means physical strength we need. So after this they have mentioned here about the players, that in hockey we need 11 players and 11 players can play hockey, this game. And to play any game which is a consist of some members of team, that game needs team spirit. So children, this is about the introduction about the hockey. And in this last paragraph they have given here about the history of hockey, that it is national game of our country, means India, and when it started during the time of imperial rule. Okay, and it is introduced by the British regiment when they came to India. At that time it was the favorite game of Indian as well as Britishers. So up to this we have already studied. So let's start with the next paragraph, which is given here at the top. You can see the first Indian hockey club was founded in 1885 to 1886 in Calcutta, which is present day we can call as Kolkata. So children, first of all इंडियन हॉकी क्लब जो था वो कब, इसकी स्थापना कब हुई, ये कब बना, 1885 से लेके 1886 में बना था, जो कोलकाता में बना था. ओके, पास्ट में उसको कैलकटा बोलते थे. सो सून आफ्टर सिमिलर क्लब्स स्टार्टेड इन बॉम्बे. अब बॉम्बे का भी नेम चेंज हो चुका है. बॉम्बे प्रेजेंट डे इट इज़ कॉल्ड मुंबई. सो जब ये इंडियन हॉकी क्लब फर्स्ट जो था ये कलकत्ता में बन गया था, उसके बाद फिर ऐसे वाले सिमिलर क्लब्स जो थे वो बॉम्बे में भी, जिसको अब हम मुंबई बोलते हैं, वहाँ पे भी ये बनना स्टार्ट हो गए थे. एंड पंजाब एज वेल, और पंजाब में भी ऐसे सिमिलर क्लब्स को बनाया गया. हाउएवर it was the 1928 Amsterdam Olympics Games that gave the much needed boost. और उस टाइम पे 1928 में जो एम्स्टरडैम ओलंपिक गेम्स हुई थी उसमें हॉकी को
बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई और हॉकी को मींस इसकी ज़रूरतों को बूस्ट किया गया, बहुत ज़्यादा इसको अहमियत दी गई. सो इंडिया रिकॉर्डेड अ स्मैशिंग विक्ट्री इन इट्स डेब्यूट गेम. सो जो इंडिया हमारी जो कंट्री थी, इसने बहुत ही अच्छा प्ले करके और अच्छी इस गेम में विक्ट्री हासिल की. आ विन एट द 1928 Amsterdam Games was just a start to the revolutionary future ahead. अब चिल्ड्रन 1928 में जो एम्स्टरडैम में जो गेम्स हुई थी, ओलंपिक गेम्स, उनमें जो इंडिया की जीत हुई, उससे एक नया रेवोल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी एक फ्यूचर जो था वो सामने आया. मीन्स उसमें इंडिया ने जिस टाइप से खेला और अपनी जीत हासिल की, उससे एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर जो था इंडियंस को मिला. A record win of 6 straight Olympic gold medals created from 1928 to 1956 has till today remained an unbroken record thanks to the legendary players like Balbir Singh, Dhyanchand, KD Singh and Babu. So children, you should know the names of these all hockey players, जिसकी हम ये बात कर रहे हैं कि जो रिकॉर्ड उन्होंने 1928 की एम्स्टरडैम ओलंपिक गेम्स में बनाया, उसमें इन लोगों ने 6 जो थे वो गोल्ड मेडल्स जो थे वो जीते. और ये 1928 से लेके 1950 तक 56 तक ये ऐसा रिकॉर्ड जो था जो उन्होंने बनाया था, मीन्स 6 ओलंपिक ये गोल्ड मेडल जीतने का, ये आज तक कोई भी उनका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया. ओके, सो इसके लिए हम किसको, कौन से लेजेंडरी प्लेयर्स को, कौन से हमारे जो ऐसे बहुत ही स्पेशल प्लेयर्स थे, उनको हमें थैंक्स करना चाहिए. वो बलबीर सिंह थे, ध्यानचंद थे, केडी सिंह थे एंड बाबू. इनके नेम जो थे वो उस टीम में इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इतना अच्छा खेला कि हमारी कंट्री को गोल्ड मेडल्स मिले. ओके, so during this golden era of Indian hockey, our players gave sterling performances on the world stage. So इस टाइम के दौरान, ड्यूरिंग दिस गोल्डन इरा, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ही सुनहरा जो था वो समय था, बहुत ही गोल्डन इरा था इंडियन हॉकी के लिए, कि हमारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने एक बहुत ही स्टर्लिंग परफॉर्मेंसेस होती हैं जो बहुत ही अलग और बहुत ही जिसको बोलना चाहिए कि अच्छा प्रदर्शन जो करते हैं, जो पहले किसी ने ना किया हो, ऐसी परफॉर्मेंस उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पे दी. ओके, so before reading the next line, let's first have a look on this rectangular box, because always a great information or special information is given in this rectangular box. So did you know means क्या आप जानते हैं? The Indian Hockey Federation was formed at Gwalior in 1925. सो इंडियन हॉकी फेडरेशन जो थी वो ग्वालियर में कब बनी, कब उसको बनाया गया? 1925 में. ओके, सो इंडिया जॉइंड द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको हम FIH शॉर्ट में बोलते हैं,
इन 1928। और हॉकी जो था, इंडिया ने जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो थी उसको 1928 में ही ज्वाइन किया था, और इसी में ही एम्स्टरडेम में जो ओलंपिक गेम्स हो गई थी और उसमें इंडिया ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। सो बिकमिंग द फर्स्ट नॉन यूरोपियन मेंबर ऑफ द FTH। आई होना चाहिए, दिस इज आई। ओके, सो इसमें इंडिया ही एक ऐसी कंट्री थी जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज थी, क्योंकि ये जो फेडरेशन थी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसमें बाकी सारे जितने भी इनके मेंबर्स थे वो सब यूरोपियन कंट्रीज़ के थे। बस एक इंडिया ही ऐसी कंट्री न्यू जो थी वो 1928 में उसने इस इंटरनेशनल फेडरेशन को ज्वाइन किया था। और जब इसको ज्वाइन किया और फर्स्ट टाइम ही जब उनके ओलंपिक्स हुए तो इंडिया ने अपने आप को बेस्ट प्रूव किया उसमें। ओके, सो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग ऑल्सो। सो नेक्स्ट लेट्स रीड दिस पैराग्राफ। द फॉर्मिंग ऑफ द इंडियन हॉकी फेडरेशन as the central administrative body strengthened the game in the country। अब क्या हुआ उसके बाद, जो इंडियन हॉकी फेडरेशन बनाई गई IHF जो इंडियन हॉकी फेडरेशन जो थी मीन्स बनाई नहीं गई, जो पहले की बनी हुई थी जिसको ग्वालियर में 1925 में बनाया गया था। ये इंडियन हॉकी फेडरेशन जो थी ये एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। मीन्स ये जो हॉकी के प्लेयर्स थे उनको ये बहुत अच्छे से ट्रेन करने लग गए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई ये इंडियन हॉकी फेडरेशन, क्योंकि जब हम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतते हैं तो हमें बहुत सारा वहाँ से पैसा भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो उसमें हम उस गेम को खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं उनको भी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये एक मीन्स ये जो इंडियन हॉकी फेडरेशन थी ये एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अब बन गई थी, और इससे इस कंट्री में जो हॉकी की गेम थी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली, बहुत ज़्यादा ताकत मिली। सो टुडे हॉकी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड loved sports in India। So children, आजकल जो हॉकी है, आज के टाइम पे जो हॉकी है वो इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर गेम बन चुकी है और लोग इसको बहुत ही प्यार से खेलना भी चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं। So with the rising popularity of cricket, hockey seems to be losing its old ग्लोरी। सो अभी एक और प्रॉब्लम ज़रूर देखने में आ रही है कि जो क्रिकेट की तरफ लोगों की बहुत बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है, बहुत उनका इंटरेस्ट जो है, क्रिकेट ज़्यादा लोकप्रिय है हमारी कंट्री में और सब जगह ये होता जा रहा है। तो इसकी वजह से हॉकी जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी ओल्ड ग्लोरी जो है, मीन्स जो उसका बहुत ही सुनहरा पास्ट जो था, जैसे लोग उसको बहुत चाहते थे, तो वो अब अपनी ये पहचान जो थी सुनहरी पहचान उसको खोने लगी है। ओके, वो कहीं खो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लोग इसको कम पसंद करने लगे हैं। नाउ मच एफर्ट इज बीइंग मेड टू ब्रिंग बैक the old time glory of this game। अब बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी कि इस गेम को, क्योंकि ये हमारी नेशनल गेम है और इसको लोगों के मन में दोबारा से इसकी जो पुरानी सुनहरी
यादें हैं या जैसे लोग इसको पहले पसंद करते थे, तो उस चीज़ को दोबारा से वापस लाया जाए। मीन्स इसकी इम्पोर्टेंस जो है फिर से हमें वैसी मिले। सो मूवीज़ लाइक चक दे इंडिया is one such effort to promote our national game. So इसको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टाइप के जो एफर्ट्स थे वो लगाए गए हैं और लगाए भी जा रहे हैं। जैसे एक मूवी बनाई गई है इसके नेम से, चक दे इंडिया, जिसमें हॉकी के बारे में बताया गया है, हॉकी प्लेयर्स के बारे में बताया गया है। तो ये जो हमारी इस टाइप के जो बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, ये इस गेम को प्रमोट करने के लिए किए जा रहे हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट द पैराग्राफ of first, second and third paragraph of this page. So after this we will start about the legend of Indian hockey, ध्यानचंद। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में ध्यानचंद के बारे में मेनली स्टोरी पढ़ेंगे कि उनके बारे में क्या दिया हुआ। तो बाय द टाइम टुडे आई एम एंडिंग माई दिस क्लास with this. Next time I'll explain you this next paragraph. So by the time you read these paragraphs and try to understand what is the matter given here, okay, and what are the different difficult words that you should underline and try to pronounce again and again. Okay, so Jai Gurudev to all of you.